Good morning to all of you. Myself Mrs. Poonam Yadav from Suraj School Rewari. I am your social studies teacher and today I want to explain a lesson of history, New Kings and Kingdoms. Chapter number 2 of history is New Kings and Kingdom. Introduction. The period between 700 CE and 1200 CE was characterized by the emergence of three regional states across the subcontinent. These new kingdoms marked a departure from earlier state structure of empires of the ancient period. It means बेटा 700 CE से लेकर 1200 CE तक जो थ्री मेन हमारे किंगडम्स उस टाइम पे राइज हुए थे, उस 700 CE टू 1200 CE जो हमारे थ्री मेन किंगडम्स उस टाइम राइज हुए थे उनके बारे में इंट्रोडक्शन है. राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स यानी किसी रीजन किसी मेन जगह पर जो किंगडम्स इमर्ज हुए थे उस टाइम पे राइज हुए थे उदय हुए थे उनके बारे में है. द मेन इज पाल्स, प्रतिहार्स, इसको हम गुर्जर प्रतिहार्स भी बोलते हैं, और थर्ड वन इज राष्ट्रकूटा. The rise of regional kingdoms. This period was the rise of three major kingdoms. Number one, the Pals in eastern India, the Gurjar Pratihars in western Indian and the Gangetic Plains, and the Rashtrakuta in the Deccan and the southern India. There was constant struggle for supremacy among the three kingdoms over the control of कन्नौज. बेटा जो कन्नौज है दिस इज इन उत्तर प्रदेश, प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में है कन्नौज, और इस कन्नौज को लेकर इन थ्री किंगडम्स में आपस में कन्फ्लिक्ट हुए थे, लड़ाइयाँ हुई थी, स्ट्रगल हुआ था. With the end of the Gupta dynasty, the focus shifted from the Gangetic Plains to Patliputra to Kannauj. Kannauj was strategically linked to the trade route. आप कह सकते हैं कि ट्रेड या व्यापार यहाँ से सबसे ज़्यादा हो रहा था, गोइंग ईस्टवर्ड इनटू द गैंगेटिक प्लेन्स एज वेल एज दोज गोइंग टुवर्ड्स द साउथ. Owing to its strategic location, the Pals, the Gurjar Pratihars and the Rashtrakuta directed their military activity towards the conquest from the 8th to the 10th century CE. The struggle over Kannauj was an attempt to revive the notion of a single kingdom ruling the entire country. Let's take a closer look at the kingdoms involved in the struggle. कौन कौन से किंगडम इस स्ट्रगल में इन्वॉल्व थे उसके बारे में आपको बताया गया है. नंबर 1 पाल्स, नंबर 2 इज प्रतिहार्स, नंबर 3 इज राष्ट्रकूटास. पाल डोमिनेटेड ईस्टर्न इंडिया सेंटर्ड अराउंड बिहार एंड बंगाल. जो आज प्रेजेंट डे बिहार और बंगाल है, यहाँ पे बेटा उस टाइम पे पाल डायनेस्टी राइज हुई थी, और पाल डायनेस्टी का जो फाउंडर था ही वाज गोपाला. द पाल डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय किंग गोपाला. अकॉर्डिंग टू द तिब्बतन मॉन्क, तिब्बत का एक मॉन्क था, एक साधु था, उसका नाम था तारानाथ. उसने कहा था गोपाला वाज इलेक्टेड एज किंग इन द 8th century CE बाय द लोकल लीडर्स ऑफ द रीजन. Gopala's successor was Dharampal. Dharampal was the son of Gopala and he was the very famous kingdom of Pal dynasty या Pal kingdom in North India. Towards the end of the 8th century, he led a successful campaign and conquered Kannauj from the Pratihars. उसने कन्नौज को प्रतिहार से उस टाइम जीत लिया था, और जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी, ही इज़ क्रिएटेड टू हैव बिल्ड द फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ विक्रमशिला. एंड द देवपाला एक्सटेंडेड द बॉर्डर्स ऑफ हिज किंगडम. देवपाला वॉज द सक्सेसर ऑफ धर्मपाल. हिज किंगडम टू इंक्लूड Kamrupa in Assam. The Pals built the Mahabodhi temple at Bodh Gaya. Look at this. This is Mahabodhi temple और ये बोध गया बिहार में है बेटा, जो पाल्स ने बनवाया था उस टाइम पे. Pratihars. The Pratihars were the main origin of the Pratihars is Hun tribes. बेटा ये Hun tribes से आए थे Pratihars. They were the most powerful Rajput clans. राजपूतों का बहुत ही उच्च कुल था ये और बहुत ही पावरफुल था उस टाइम पर. द फर्स्ट इम्पोर्टेंट प्रतिहार किंग वाज नागभट्टा वन, हु इन द 8th century ब्रेवली रेजिस्टेड अरब इन्वेंशन. इसने अरबों के जो इन्वेंशन थे वो उनको बहुत अच्छे से इसने हैंडल किया था. द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज मिहिर भोज. मिहिर भोज था, उसने बेटा 836 CE से 886 CE तक रूल किया था और बहुत ही पावरफुल प्रतिहार था ये.
He extended their control over large parts of Rajasthan and Malwa and for a brief while even controlled Kannauj. कन्नौज पे भी इसने अपना कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था और मिहिर भोज was the most and powerful Pratihars. Third one is Rashtrakuta. The third dynasty which was involved in the conflict over Kannauj was the Rashtrakuta of Deccan. Deccan यानी साउथ एरिया से थे, हमारे साउथ इंडिया से. According to some Arabic sources, उनमें राष्ट्रकूटा वर द मोस्ट पावरफुल ऑफ द थ्री डायनेस्टीज. इन तीनों डायनेस्टीज में पाल, प्रतिहार्स और राष्ट्रकूटा, इन तीनों डायनेस्टी में सबसे ज़्यादा जो पावरफुल थे वो राष्ट्रकूटास थे. Danti Durga founded the Rashtrakuta dynasty in the 8th century CE. He was originally a feudatory of the Chalukyas. ये चालुक्य से बिलोंग करता था बेटा दंती दुर्गा. Danti Durga was the founder of Rashtrakuta dynasty. He was originally rulers like Amogvarsha and Krishna III gave some stability to the kingdom. उस टाइम में इनके और भी जो रूलर्स हुए थे उनमें अमोघवर्षा बहुत फेमस था और कृष्णा थर्ड. They also extended the frontiers to include Kannauj. The last Rashtrakuta king was Kaka II, who was overthrown by Tailapa of the later Chalukyan dynasty. The three main dynasties are Palas, Pratihars and Rashtrakuta. Pala's founder was Gopala. Gopala was the founder of Pal dynasty. And Pratiharas, Nagbhat I is the famous Pratihar and important Pratihar king. And the third one is Rashtrakuta and Danti Durga. Danti Durga was the founder of Rashtrakuta. एंड ऑफ द ट्राइपार्टीज स्ट्रगल. इन तीनों का जो स्ट्रगल था उसका एंड कैसे हुआ बेटा? आफ्टर द कैप्चर ऑफ कन्नौज बाय द प्रतिहार रूलर नागभट्टा II, कन्नौज रिमेन्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रतिहार्स एज द पावर ऑफ पालास एंड राष्ट्रकूटा कंसिडरेबली डिक्लाइंड बाय द 9th century. द लास्ट प्रतिहार रूलर ऑफ कन्नौज वाज डिफीटेड बाय महमूद ऑफ गजनी इन 1017 CE. बेटा प्रतिहारों का जो पावरफुल है उस टाइम पे किंग था नागभट्ट, उसने जब कन्नौज को अपने कंट्रोल में कर लिया था तो उस टाइम पे पाल और राष्ट्रकूटा अलग हो गए थे. और उस टाइम पे जब 1017 CE में महमूद ऑफ गजनई आया और उसने अटैक किया कन्नौज पे और उसने तब हराया था प्रतिहार रूलर को. उसके बाद आता है बेटा डिक्लाइन ऑफ द थ्री डायनेस्टीज. डिक्लाइन होता है ख़त्म हो जाना. इन तीन डायनेस्टीज का ख़त्म किस तरह हुई है? द थ्री डायनेस्टीज डिक्लाइंड simultaneously their strength were similar and they were dependent on well organized army. बेटा ये जो डायनेस्टी थी इनके पास इनकी जो सेना थी आर्मीज थी वो वेल ऑर्गेनाइज थी और सिमिलर ही थी सेम. देयर कॉन्स्टेंट कैंपेन्स मीन्ड मेंटेनेंस ऑफ लार्ज आर्मीज एंड प्रेशर ऑन सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू. बेटा इनका जो सोर्स था रिवेन्यू का यानी जो टैक्स था वो रिवेन्यू जो टैक्स था वो एग्रीकल्चर से ही आया करता था और इतनी बड़ी लार्ज जो इनके पास आर्मी थी उनको मेंटेन करने के काम आता था. वाइल दे रिमेन बिजी ओवर देयर कन्फ्लिक्ट इन कन्नौज. जब भी बार बार कन्फ्लिक्ट में कन्नौज वाले कन्फ्लिक्ट में जब भी बिजी रहे देयर फ्यूडरेट्स क्लियर्ड देमसेल्व्स इंडिपेंडेंट. जो इनकी प्रोविंस थी जो इनकी जगह थी उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि वो अब आज़ाद हैं. दिस डिमिनिश्ड देयर सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू. इससे इनका जो रिवेन्यू था जो टैक्स था वो कम हो गया एंड लेड टू देयर कॉन्क्वेस्ट फॉल. और इसलिए दिस डिमिनिश्ड देयर सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू एंड लेड टू देयर कॉन्सिक्वेंट फॉल. इस तरह इनका लगातार फॉल हो गया यानी ये ख़त्म हो गई थी डायनेस्टीज़. उसके बाद आते हैं बेटा किंगडम्स बियॉन्ड द गैंगेटिक प्लेन्स. गैंगेटिक जो प्लेन है उसके यहाँ पे जो किंगडम्स थे राज्य थे उनके बारे में. ऑन द प्रीपेरी ऑफ द लार्ज किंगडम्स वर द स्मॉलर स्टेट्स सच एज दैट ऑफ नेपाल, कामरूपा, कश्मीर एंड उत्कला. उत्कला मीन्स प्रेजेंट डे उड़ीसा. And later dynasties such as the Shilaharas in Maharashtra.
In Rajasthan and central India, there arose a number of small kingdoms and ruled by a dynasty called the Rajputa. बेटा उस टाइम में राजस्थान में बहुत सारे राजपूत जो क्लीन्स थे, राजपूत जो डायनेस्टीज थी, वो उस टाइम में राइज हुई थी, रूल कर रही थी, जिनमें महाराष्ट्र में बेटा शिलाहाराज थे और राजस्थान में राजपूत थे, राजपूत डायनेस्टीज. In the 9th and 10th century, we are talking about 700 to 1200 centuries. This is 9th to 10th century. A number of Rajput kingdoms gained in prominence. There is a lot of controversy surrounding their origin. देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी सराउंडिंग देयर ऑरिजिन. उनके उत्पत्ति के बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सी है बेटा कि वो कहाँ से आए थे. दे कॉल्ड देमसेल्फ राजपुत्र. वो अपने आप को राजपुत्र कहते थे. राजपुत्र का वैसे मीन्स होता है राजा का पुत्र, विच लिटरेरी मीन दैट दे वर प्रिंस, यानी कि वो प्रिंस थे, राजकुमार थे. दे क्लेम्ड रॉयल लाइनेजेस एंड asserted themselves as क्षत्रिय. वो अपने आप को क्षत्रिय कहते थे. द प्रीवियस डायनेस्टीज हैड रूल्ड इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट स्टेटस. वो अपनी कास्ट के अकॉर्डिंग रूल कर रहे थे. दीज डायनेस्टी लिंक्ड देयर लाइनेज आइदर विद द सूर्यवंशी और सोलर फैमिली. वो अपने आप को सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और अग्निवंशी कहते थे, या अग्निकुल से बिलोंग करते थे. लाइक सूर्यवंशी और सोलर फैमिली, चंद्रवंशी और द लूनर फैमिली एंड द अग्निकुला यानी डिसेंडेंट्स ऑफ द फायर फैमिली. वो अपने आप को फायर फैमिली से बिलोंगिंग मानते थे. It is perhaps possible that from the beginning of the 9th century, Rajput dynasties dominated northern parts of India. They formed the primary obstacles to the complete conquest of India. For long, they maintained their independence in Rajasthan and the forest of central India. Later, Sultan Alauddin Khilji took over the two Rajput forts of Chittor and Ranthambore. It means बेटा कहते हैं it is perhaps possible, शायद इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि बिगनिंग में 9th सेंचुरी की बिगनिंग में राजपूत डायनेस्टी डोमिनेटेड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. इंडिया का बहुत सारा नॉर्थ पार्ट जो था वो राजपूत डायनेस्टी ने कवर कर लिया था. दे फॉर्म द प्राइमरी ऑब्स्टेकल्स टू द कंप्लीट कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया. इंडिया को कंप्लीट कॉन्क्वेस्ट करने के लिए उन्होंने अपने बहुत सारे कैंपेन चला रखे थे. फॉर लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक दे मेंटेन देयर इंडिपेंडेंस इन राजस्थान. जब तक अलाउद्दीन खिलजी नहीं आया था उससे पहले राजस्थान में जो राजपूत थे उन्हीं का रूल था. बाद में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यानी लेटर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी टुक ओवर द टू राजपूत फोर्ट्स. और राजपूतों के दो बड़े बड़े फोर्ट जो किले थे चित्तौर एंड रणथंभौर, उनको हराया था वहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने. द मेजर राजपूत डायनेस्टीज वर द प्रतिहार्स, द चौहान्स, द सोलंकीज एंड द परमार्स. द प्रतिहार्स रूल्ड इन साउदर्न राजस्थान. राजस्थान का जो साउदर्न पार्ट है वहाँ पे प्रतिहारों ने रूल किया था. द चौहान इन सकम्बरी साउथ ईस्ट ऑफ दिल्ली एंड द सोलंकी पावर वाज concentrated at Gujarat and the Parmars were located in Malwa. The focus of each of these dynasties was the territory ruled by them.